Hello everyone. Today we are here to continue the discussion of our third unit, and that is formatting in word processor. So today we will start from the topic that is changing case. So changing case is a very interesting work, and so here we can change the case of the typed material. Means unfortunately if we have typed all things in the small letter and we wish to change them in capitals or in sentence case or in toggle case, so we will be using the tools of digital documentation that is available to help us in changing case. So this feature is very useful. यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर कोई भी कंटेंट, कोई भी लाइन अगर हमने सब स्मॉल में टाइप कर दिया एंड इफ वी विश टू चेंज देम इन द कैपिटल्स, वी हैव द ऑप्शन ऑफ चेंज केस. अगर हमने सब कैपिटल में टाइप कर दिया अनफॉर्चुनेटली एंड वी आर प्लानिंग टू चेंज देम इन द लोअर केस, देन ऑल्सो वी हैव द ऑप्शन. या इफ वी आर प्लानिंग टू चेंज देम इन सेंटेंस केस. सेंटेंस केस में क्या होता है, हमारा सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है, उसके बाद सब स्मॉल में हम लिखते हैं. All of you might be knowing this thing. So this we can also done just on a single click. So just we will do the practical. We will watch the practical demonstration how we can do this and where this option is available. Just I'm switching to the OpenOffice window. So here is the document, and I'll try to change the case. Like here we have a sentence case, so I will help to change in the lower case. Okay, just let me do this. Just a minute. To perform this change case, just I have selected one paragraph and go to the format menu. Under the format menu we have option of change case, so I will do here uppercase. See, all the characters are converted into the capital character, and if we wish to change them in lowercase, that is also available. If we wish to change them in capitalize every word, so see what happens. जब हम capitalize each word option use करते हैं, then what happens, हमारे हर कैरेक्टर का हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल कर दिया जाता है. दिस इज वेरी क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू. जो हमारा सेलेक्टेड पोर्शन है, आप इसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, अगर हम टॉगल केस करेंगे तो क्या होगा, जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा. जस्ट सी इट इज क्लियरली विजिबल. जैसे हमने कैपिटलाइज इच वर्ड किया था तो हमारे हर लेटर का, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो था वो कैपिटल था. बट अभी जैसे ही हमने टॉगल केस पे क्लिक किया, देन व्हाट हैपनिंग, जो कैपिटल लेटर था वो स्मॉल में कन्वर्ट हो गया, जो स्मॉल था वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया. इफ वी प्लान टू चेंज देम इन अगेन इन सेंटेंस केस, जस्ट क्लिक हियर. नाउ इट इज इन सेंटेंस केस. ओके, so the next topic is paragraph formatting. When we talk about the paragraph formatting, we will talk about the alignment. First of all, we will learn to change the alignment of the paragraph. If we talk about the default alignment, that is left. Just see the practical. Without practical, nothing is useful. See, whatever line I have written, that is perfectly aligned in the left side. But what about right? You cannot say that right section is perfectly aligned. So this is the default alignment, and that is left. One more thing, that left alignment shortcut is available here on the formatting toolbar, and this icon is used to align the text in the left. And if we wish to align in centered, that is available here. And have a close watch. अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये भी दिखाई देगा that centered के आगे उसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, Ctrl+E. that is the shortcut used to perform centered alignment. And here for left alignment, it is clearly written like Ctrl+L. okay, and here this is for right alignment, and this is Ctrl+R, and this is justified alignment. See, I'm going to select all the documents here, and I'm going to click on this right alignment. See,
what happens? Now the text is perfectly aligned in the right side, but left is not perfectly aligned. Now I'm in first paragraph and I'm going to click on the centered alignment. See, this is aligned centered, means left and right are not aligned. And here next paragraph I'm going to make it justified. Justified means left and right both sides are properly aligned according to the margin. See, this is, sorry, and if we perform here on the left alignment, see, this is left aligned, this is centered alignment, this is justified, and this is right aligned. So all the four alignments are selected here and it is clearly visible to all of you. So this is the way. And one more thing, that we have same option inside the menu bar as well. So for this we will go to the format menu and here we will choose the paragraph, and when we will choose paragraph we have this alignment option here. Okay, so we can do left, right, centered, justified. Okay, so this option is available where? Under the format menu inside the paragraph option. Okay, next is indentation. So what is indentation? Indentation is like a gap from the marginal area. जैसे अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में जो भी मार्जिनल साइज, जो भी मार्जिन यूज किया हुआ है, उसके अलावा इफ वी आर प्लानिंग टू लीव एक्स्ट्रा स्पेस in a line or in a paragraph, that is known as indentation. That is in a very layman term, this is the definition of indentation. Just see the practicals, and here we have the paragraphs. If I'm going to push this first word inside, that is indentation. So in indentation we have two options, means before text and after text. Before text indentation is known as left indentation. Let me perform it practically. So I will go to the format menu and here I will choose paragraph option, and here we have indents and spacing. This is the option, and here we have before text. So I'm going to make it 5 centimeters indentation before text, means I'm performing left indentation. See, it is clearly visible that text is pressed 5 centimeter from the left margin. ये है हमारा left indentation. अब अगर हम बात करें right indentation की, that is known as after text. So again I'll go to the format menu, go to the paragraph, and here we have before text, after text. Again I will give here 2 centimeter size, and that is, see, now I'm going to make it justified alignment. Okay, so I'll make it justified. So this is the way to compress the paragraph. And why we are compressing this, because if we are planning to put an image here, okay, are planning to put image here, just to decorate our document, if we wish to compress them after the marginal area, this is the way to perform the indentation. And one more indentation is that first line indentation. So again go to the format menu and click here the paragraph option, and here we have the first line indentation. So first line, if I'm using 5 centimeter already before text, so here I will perform 6 centimeter. See, so this is the way. And अगर हम before text and after text indentation नहीं perform कर रहे हैं, then what we can do, just click here in this paragraph, go to the format menu, go to the paragraph option, and first line just 1 centimeter. Okay, just let me make this paragraph justified so that you can easily identify the difference. See, here I have performed 1 centimeter indentation. Let me increase this. So make it, just make it 2 centimeter. That is clearly visible to you. So this is the way to perform the indentation. This is known as the first line indentation as well. Okay.
And next option is what? Next option is line spacing. So line spacing is what? Line spacing is the space in between the lines. See, I'm working on the 12 font size, and now if I'm going to change the line spacing, it will change the space in between the lines. For that we have to go to the format menu and then paragraph option, and here we have spacing, line spacing single. So if I put 1.5 lines, see what happens. So the space in between the lines are equals to 12 into 1.5, because it is all about the font size. हमारी जो font size होगी उसका 1.5 गुना हमने line spacing यूज किया. Okay, so this is the line spacing. अगर आप इसको डबल करते हैं तो it will be 12 into 2 like 24 points. Again go to the paragraph option, and here we have double option. See, so the space in between the lines are equals to 12 into 2, 24 points. And one more option we have, that is paragraph, and here we have proportional, at least, leading, fixed. So all are the options that you can try now. And now I will switch to the next topic, that is paragraph spacing. पैराग्राफ स्पेसिंग इज जस्ट सिमिलर टू द लाइन स्पेसिंग. लाइन स्पेसिंग क्या करता है, वो आपके लाइंस के बीच के स्पेसिंग को देखता है, और पैराग्राफ स्पेसिंग की जब हम बात करते हैं तो वो 2 पैराग्राफ के बीच के स्पेस की बात करते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लाइन के स्पेस की बात की, और यहाँ पे हम बात करेंगे 2 पैराग्राफ के बीच के स्पेस की. इसके लिए हम कोई दूसरा पैराग्राफ चूज करेंगे जहाँ पे हमने कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं की होगी, टू मेक दिस वेरी क्लियर एंड स्मूथली विजिबल टू ऑल ऑफ यू. सो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, एंड फ्रॉम हियर हम इसका अलाइनमेंट भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, एंड टेक्स्ट का हम इसको कर देते हैं Ctrl+L से लेफ्ट अलाइंड. ओके, नाउ ये जो पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ है, इसके बीच की स्पेसिंग को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे. ओके, सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ, एंड यहाँ से हम आफ्टर पैराग्राफ साइज को इंक्रीज करेंगे. अगेन गो टू द फॉर्मेट ऑप्शन, फॉर्मेट मेन्यू, देन पैराग्राफ, and here we have the spacing above paragraph or below paragraph. So this is set it to the 0.21 centimeter. Now what I'm going to do, I'm going to increase this by 1 centimeter. Okay, so click here and see the spacing is increased after paragraph. Now if I'll click on this third paragraph, and I'm going to change the before paragraph space. So above paragraph, not before, this is above paragraph and that is below paragraph. So above, for above I'm going to change it 1 centimeter again. See, so अगर हम above paragraph spacing करेंगे तो हम जिस भी पैराग्राफ पे होंगे उसके ऊपर स्पेस आएगा, और अगर हम below paragraph ऑप्शन चूज करते हैं तो हम जिस भी पैराग्राफ पे होंगे, हमें इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू सेलेक्ट द पैराग्राफ, जस्ट क्लिक एनीवेयर इनसाइड दैट पैराग्राफ. ओके, और फिर आप उस ऑप्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. कहाँ से, फॉर्मेट मेन्यू में जाना है, वहाँ पे पैराग्राफ ऑप्शन, एंड हियर वी हैव स्पेसिंग. ओके, सो लेट इट बी 0 एंड मेक इट 0.5 as well. See, the space is changing. Okay, now next option is page orientation. So let's talk about the page orientation. This is also very important, and for that I will reduce the page size like from 130% to, see, this is the page size we have. Make it single or double, not more than this. See, we are going to talk about the orientation. So this is the A4 size paper, and for this we can go to the format option. Here we have the page, the format menu, page option, and this is
The paper format is later, we can change it to A4, that is very commonly used. So I'm going to change it to A4. Let me do it, A4 size paper. So now we are on A4 size paper. Okay, and here the default orientation is known as portrait orientation. Again, go to the format menu and on the page, see, this is portrait orientation. Okay, so in portrait orientation, what we have width of 21 centimeter and we have height of 29.7. so what we can say कि जो हमारी short edge है वो हमारी horizontal है और जो हमारी long edge है वो vertical है, तो that is the portrait mode. अगर हम इसको landscape mode में करते हैं, see what happens, जो हमारा short edge है वो अब हमारा height बन गया और जो हमारा मीन्स जो हमारा शॉर्ट एज है वो हमारा परपेंडिकुलर है और जो हमारा लॉन्ग एज है वो हॉरिजॉन्टल है. ओके, जैसे हम इस पे ओके पे क्लिक करेंगे, सी पेज की साइज चेंज हो गई. एक चीज़ और अगर आप ध्यान दें, ये देखिए पेज 34 जो हमारा सेम कंटेंट था वो 34 में चला गया. एक बार हम फॉर्मेट में चलते हैं, पेज ऑप्शन में चलते हैं and from here we are going to change the orientation again, and if I'll go to the portrait, see the document is adjusted in 32 pages. So it's all about the content, it's all about the presentation. आप जैसा चाहे वैसा orientation choose कर सकते हैं. It is totally depends upon your content. It matters on the matters of the document. Okay, so it is very easy to change the orientation from the format menu. Choose the page option and here we have the orientation option. Okay, now moving to the next topic, and that is margin. Okay, so margin की हम बात कर लेते हैं. margin में जब भी हम बात करते हैं तो it is clearly visible. ये देखिए जो हमारे ये पेज का साइज है इसमें चारों तरफ कुछ white space फ्री रखे गए हैं and that is the marginal space. अगर हम बात करें तो फॉर्मेट में चलते हैं, पेज ऑप्शन में चलते हैं और यहाँ पे आप क्लियरली देख पाएंगे मार्जिन्स. सी हियर द मार्जिन्स 2 सेंटीमीटर लेफ्ट, 2 सेंटीमीटर राइट, 2 सेंटीमीटर टॉप एंड 2 सेंटीमीटर बॉटम. तो आप किसी भी तरफ के मार्जिन को चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं टॉप के मार्जिन को चेंज करके थोड़ा सा बढ़ा देना, क्लिक ऑन 5. सी जो ऊपर का वाइट स्पेस था वो चेंज हो गया. अगेन हम फॉर्मेट ऑप्शन में चलते हैं, पेज पे चलते हैं और यहाँ से हम बॉटम के मार्जिन को भी थोड़ा सा चेंज करके 5 की जगह पे 4 कर देते हैं. ओके, सी बॉटम का स्पेस भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाइट स्पेस इंक्रीज हो रहा है. अगेन going to the format menu and then page option, and from here I'm going to change it to the left to the 3 and right को भी 3 कर देते हैं just for your. सी हमने लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम सभी मार्जिनल स्पेस को इंक्रीज कर दिया और आपको डिफरेंस क्लियरली विजिबल होगा. अभी जो डॉक्यूमेंट हमारा 32 पेज में था अब वो 42 पेजेस में आ गया है, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं. ओके, तो आप जब मार्जिन को घटाते या बढ़ाते हैं तो उस हिसाब से आपका पेज का कंजम्पशन भी घटता और बढ़ता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा वाइट स्पेस अपने पेपर में फ्री रखेंगे आपका पेज का डॉक्यूमेंट उतना ही नंबर बढ़ता जाएगा. ओके, सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ हाईलाइटिंग कलर्स. हाईलाइटिंग कलर्स की जब हम बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, वी कैन यूज़ द हाईलाइटर, मीन्स डिजिटल हाईलाइटर टू हाईलाइट द टेक्स्ट. ओके, हम यहाँ से इसको 100% पे करते हैं, नो नॉट ऑन 100%, अगेन हम इसको 130% पे ले आते हैं सो दैट वी कैन वर्क ऑन द टॉपिक्स. लाइक हम पेज पे चलते हैं जहाँ पे कोई भी कलर ना हो. ओके, सी हियर वी हैव द पेज. ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके ओरिएंटेशन को थोड़ा सा, नॉट ओरिएंटेशन, इसके अलाइनमेंट को चेंज करते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं. एंड हाईलाइटर के लिए वेयर वी हैव टू गो टू यूज़ द हाईलाइटर अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, हियर दिस टॉपिक हाईलाइटिंग कलर्स, तो हमें क्या करना होगा, दिस ऑप्शन इज़ यूज्ड फॉर हाईलाइटिंग जो हमारे फॉर्मेट टूल बार पे अवेलेबल है. बट वी हैव टू डू जस्ट क्लिक ऑन एनी कलर. बाय डिफॉल्ट येलो कलर इज सेलेक्टेड, सो क्लिकिंग ऑन दिस एंड सी द आइकन इज चेंज लाइक फॉर्मेट पेंट ब्रश. और यहाँ से हम जिस भी कंटेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं जस्ट वी हैव टू सेलेक्ट.
तो जितना कंटेंट आपने सेलेक्ट किया उतना कंटेंट हाईलाइट हो गया, जैसे हम हाईलाइटर यूज़ करते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान देने की बात यह है कि जब आप हाईलाइटर यूज़ करते हैं तो ना तो टेक्स्ट का कलर चेंज होता है और ना ही हमारे बैकग्राउंड का कलर चेंज होता है, ठीक है। सो आप किसी भी कंटेंट को हाईलाइट कर सकते हैं, कितने भी सेक्शन को आप हाईलाइट कर सकते हैं, ओके। और ये एक बार सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्टेड ही रहता है। यू हैव टू गो एंड क्लिक हियर टू डिसेलेक्ट द हाईलाइटर। आपको अगर किसी दूसरे कलर में हाईलाइटर यूज़ करना है तो यू आर फ्री टू यूज़ दैट, जस्ट गो एंड चेंज द कलर। बट बाय डिफ़ॉल्ट येलो कलर ही हम लोग यूज़ करते हैं, बट इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप किस कलर में हाईलाइटर यूज़ करना चाहते हैं। सो दिस इज़ द वे टू यूज़ द हाईलाइटर। हम इससे चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कौन से कलर से हाईलाइट करना चाहेंगे। नेक्स्ट, बैकग्राउंड कलर। जब हम बात करते हैं बैकग्राउंड कलर की, तो बैकग्राउंड कलर का इम्पैक्ट हाईलाइटर से डिफरेंट होता है। हाईलाइटर में हमारा जो टेक्स्ट है, हम सिर्फ उस टेक्स्ट के ऊपर उस हाईलाइटिंग कलर की एक लेयर लगा देते हैं, लेकिन जब हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं तो ये जो पीछे हमारा वाइट बैकग्राउंड है वो हम चेंज कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पैराग्राफ के बैकग्राउंड को चेंज करता हूँ एंड फ्रॉम हियर वी कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर। सो आई एम गोइंग टू क्लिक हियर एंड आई एम गोइंग टू मेक इट रेड। सी, हमने बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया, बट कुछ जगह पे हमारा येलो कलर अभी भी अवेलेबल है बिकॉज हमने उस येलो कलर में हाईलाइटर यूज़ किया हुआ है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज द हाईलाइटर कलर, या फिर हमें यहाँ जाके नो फिल करना होगा। तो ये देखिए हमने यहाँ से हाईलाइटर कलर हटा दिया एंड सेम हमारा यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी रिमूव हो गया। नाउ हमने यहाँ से हाईलाइटिंग कलर्स को रिमूव कर दिया। अब जब हमने बैकग्राउंड कलर रेड अप्लाई किया हुआ है तो ब्लैक इस पर थोड़ा सा रीडेबल नहीं होता है, तो फ्रॉम हियर वी कैन चेंज द फॉन्ट कलर एज वेल, ओके। तो अभी आप डिफरेंस अगर देखें तो जब हमने हाइलाइटर यूज़ किया था तो आप देखेंगे जहाँ तक आपका टेक्स्ट है वहीं तक येलो कलर की एक लेयर उस टेक्स्ट पे आई, लेकिन जैसे ही हमने बैकग्राउंड कलर चेंज किया तो इस पैराग्राफ का जो एरिया है वो पूरे का पूरा एरिया वाइट से रेड कर दिया गया। तो ये डिफरेंस है आपका हाइलाइटर में और आपके बैकग्राउंड कलर में, ठीक है। हाईलाइट करने के लिए हमें ये ऑप्शन यूज़ करना है, हाईलाइटिंग ऑप्शन, जो हमारे फॉर्मेट टूल बार पे अवेलेबल है, और बैकग्राउंड कलर के लिए ये ऑप्शन, फॉन्ट कलर के लिए ये ऑप्शन। ये तीनों ही टूल्स हमारे फॉर्मेटिंग टूल बार पे इजीली अवेलेबल है, सामने विजिबल है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज असाइन बॉर्डर टू द पैराग्राफ। हम किसी भी पैराग्राफ को बॉर्डर असाइन कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं या इसी पेज पे हमारे पास भी अभी कुछ पैराग्राफ्स अवेलेबल हैं, हम इनको थोड़ा सा लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं या सेंटर्ड अलाइन कर देते हैं, और नॉट ओनली सेंटर्ड, हम इसको जस्टिफाइड कर देते हैं और इसका थोड़ा सा इंडेंटेशन से, इंडेंटेशन वाले ऑप्शन से बिफोर टेक्स्ट 1 एंड आफ्टर टेक्स्ट 0.5, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं सो दैट जो हम बॉर्डर लगाएंगे वो क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इस पैराग्राफ पे एक बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। गो टू द फॉर्मेट, ओके, एंड फ्रॉम हियर वी विल गो टू द पैराग्राफ, एंड पैराग्राफ में वी हैव बॉर्डर्स ऑप्शन। बॉर्डर्स ऑप्शन में आपको जो भी बॉर्डर ठीक लगता है आप वो बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे ये डबल बॉर्डर यूज़ करना है तो क्लिक ऑन ओके। लेट मी रीट्राई। मैं इस पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ एंड गोइंग टू द फॉर्मेट मेन्यू, देन पैराग्राफ, यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं। बॉर्डर के बाद ये हमें ऑप्शन चूज़ करना है, चारों तरफ वाला बॉर्डर हम लगाना चाहते हैं। क्लिक ऑन द ओके। सी, यहाँ पे ये बॉर्डर आ गया। हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे कुछ डिफरेंट बॉर्डर यूज़ कर देंगे। पैराग्राफ एंड हियर इज द बॉर्डर ऑप्शन, ओके। यहाँ पे हम सपोज ये ऑप्शन यूज़ करते हैं और यहाँ से सी, हम हर पैराग्राफ पे डिफरेंट बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ द वे। क्या करना है, हमको पैराग्राफ पे कहीं पे भी क्लिक करना है, एनीवेयर ऑन द पैराग्राफ,
गो टू द फॉर्मेट मेन्यू, देन क्लिक ऑन द पैराग्राफ और यहाँ से बॉर्डर टैग पे जाना है। बॉर्डर टैग पे जाने के बाद यहाँ पे जो भी बॉर्डर साइज अवेलेबल है उसमें से जो भी बॉर्डर आपको पसंद है, डिफरेंट कलर में भी यूज़ कर सकते हैं हम। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप जिस भी कलर में बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। और यहाँ से चारों साइड का बॉर्डर आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, all the direction must be selected to apply the border on the paragraph. So it is clear. Now moving to the next topic, and that is to add background. background ऐड करने की जब बात आती है तो what we can do, हम किसी भी पैराग्राफ, किसी भी पेज के पीछे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हम इस पेज को फिर से थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके, और हम इस पेज पे बैकग्राउंड लगाते हैं। फॉर दैट वी हैव टू गो टू द फॉर्मेट मेन्यू, देन पैराग्राफ अगेन। पैराग्राफ पे जाने के बाद वी हैव द बैकग्राउंड। हम बैकग्राउंड कलर यहाँ से दे सकते हैं, या फिर अगर हमें कोई ग्राफिक्स या कोई फाइल लगानी है तो विल क्लिक ऑन द ब्राउज। जैसे हम ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये आपके कंप्यूटर में अवेलेबल ग्राफिक्स को यूज़ करने की फैसिलिटी देता है। मीन्स वट एवर इमेज यू हैव स्टोर्ड इन टू योर कंप्यूटर आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन अ इमेज, ओके, एंड क्लिक ऑन ओके बटन। नाउ सी दिस इमेज इज अप्लाइड हियर। अभी पेज की साइज को थोड़ा सा चेंज करते हैं सो दैट हम इस बैकग्राउंड को आसानी से देख सकें। ओके, सी वेयर वी हैव अप्लाइड, कहाँ पे अप्लाई किया है बैकग्राउंड कलर, जस्ट अ मिनट। हम एक काम करते हैं, हम किसी दूसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम कोई भी इमेज यूज़ कर लेते हैं। ओके, ब्राउज, और हम क्लिक करते हैं किसी भी पेज पे, लाइक इस पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सी इस टेक्स्ट के पीछे वो बैकग्राउंड तो आ गया। नाउ उस बैकग्राउंड, उस इमेज के कारण हम इस टेक्स्ट को पढ़ नहीं पाएंगे, तो वी हैव टू चेंज द कलर ताकि हम इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकें। सी यहाँ पे हमने बैकग्राउंड में एक इमेज को इंसर्ट कर दिया। अगर हम एक से ज़्यादा पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं तो भी हम पैराग्राफ के पीछे बैकग्राउंड इमेज अप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्लिक ऑन द ग्राफिक्स और हम यहाँ से कोई दूसरा इमेज चूज करते हैं, लाइक इस इमेज को। ओके, क्लिक ऑन द ओके। तो आप देख पा रहे हैं इमेज काफ़ी बड़ा है और पैराग्राफ हमारा काफ़ी छोटा है। तो बट दिस इज़ द वे कि हम हर पैराग्राफ पे अलग अलग या एक ही कलर, एक ही पैराग्राफ बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द वे कि हम अपने टेक्स्ट के हर पैराग्राफ के बाद एक डिफरेंट कलर का बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। ओके, या अगर हम चाहते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट के पीछे सिर्फ एक ही इमेज हो तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए what we have to do, for that what we have to do, we have to click on the insert menu. Insert menu से what we can do, we can do the graphics. Okay, हम उस टॉपिक को बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to complete our topics. Next topic is bullets and numbering. Bullets and numbering में we will talk about the creating a bulleted list. हम कैसे bulleted list create करेंगे, then we will talk about the creating a numbered list. Okay, तो हम आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे here हम नीचे चलते हैं लास्ट सेक्शन में। if we wish, हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, whatever formula we have created. ओके, ये सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट हमने रिमूव कर दिया। एंड नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट। तो अगर हम कोई भी
बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपल, अगर हम क्रिएट करना चाहें तो हियर वी हैव द ऑप्शन, दिस इज द नंबर लिस्ट एंड दिस इज द बुलेटेड लिस्ट। ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक बुलेटेड लिस्ट आ गया। ओके, एप्पल, ओके, यहाँ पे ओरिएंटेशन हमें चेंज करना पड़ेगा। एप्पल, गुआवा, grapes, and then banana, okay, and then pomegranate, okay. Let me change the orientation of this text that we have set to the 90-degree rotation format, then characters skip. After this characters, here we have the position we have rotation, and click on the 0-degree. See, the list is available here. Okay, apple is not selected, apple was not selected, so click on the character and from the position click this. See, this is bulleted list and that is very easy to create. जस्ट हमें इस फॉर्मेटिंग टूल बार पे इस बुलेट लिस्ट को ऑन या ऑफ करना है। शॉर्टकट इसका शिफ्ट प्लस F12। ओके, अगर हम शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करते हैं, सी हम बुलेटेड लिस्ट से बाहर आ जाते हैं। शिफ्ट प्लस F12 हम प्रेस करेंगे तो फिर से यहाँ आ सकते हैं। एंड हियर वी हैव सम ऑप्शंस एज वेल, नंबरिंग ऑफ, नंबरिंग ऑन और ऑफ। सी, अगर हम सिर्फ नंबरिंग यूज़ करना चाहेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट F12 है। अगर हम रोमन न्यूमरल्स यूज़ करना चाहते हैं तो क्या है, F12 है। और शिफ्ट F12 है हमारे बुलेटेड लिस्ट के लिए। तो व्हाट वी हैव, शिफ्ट प्लस F12 for what, for bullet list. Okay, and see, shift plus F12 is for bulleted list. Okay, F12 for numbered list and that is for Roman, and shift control shift F12 for numbered list। ये सेम बटन हमारे पास ऑन ऑफ के लिए भी हैं, तो हम शिफ्ट और F12 एक बार प्रेस करते हैं, हम नंबर लिस्ट से बाहर आ गए। अब हम सिर्फ F12 प्रेस करते हैं, नाउ वी आर इन नंबर लिस्ट। ओके, और कंट्रोल शिफ्ट F12 हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, चेक कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F12, ओके, इट इज नॉट वर्किंग, लेट मी ट्राई वंस। कंट्रोल शिफ्ट, let me try again from here. Okay, now control shift F12. Okay, for Roman numerals this is, just a second, let me, F12, and this is for shift F12, and here we have the list. Okay, numbering of control shift F12, and this is numbering on of F12, numbering of control shift F12. Okay, sorry, numbered list off. So this is the correct option, and see, F12 for numbered list, and F12 से हम नंबर लिस्ट स्टार्ट भी कर सकते हैं, उसको ऑफ भी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F12 से हम नंबर लिस्ट को ऑफ कर सकते हैं। ओके, सो सी, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और अगर हम शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करते हैं तो ये बुलेटेड लिस्ट में आएगा, और हम सिर्फ F12 प्रेस करते हैं तो ये नंबर लिस्ट में आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द वे हम नंबर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग्स के और भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, नंबरिंग टाइप में भी हमारे पास और सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम जिस भी ऑप्शन को चाहे उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ओके, सो दैट ऑप्शन इज अवेलेबल हियर। एक बार हमें क्या करना होगा, F12 अगर हम प्रेस करते हैं तो हम नंबर लिस्ट में चले जाएंगे एंड वहाँ से हम अलग अलग ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करते हैं तो हम बुलेटेड लिस्ट के ऑप्शंस में चले जाएंगे एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट ऑप्शंस। क्लियर, चेक कर लेते हैं डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ करके। सो दिस इज़ द वे आप बुलेटेड लिस्ट और नंबर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हेडर एंड footer. So header and footer, सुम डॉक्यूमेंट का साइज थोड़ा सा छोटा दिया देखने के लिए,
अब हम कहाँ जाते हैं, हम चाहते हैं इसमें हेडर एंड फुटर इंसर्ट करना। ओके, तो हेडर क्या होता है, हेडर इज द टॉप मोस्ट सेक्शन दैट इज कॉमन फॉर ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट। ये हमारे डॉक्यूमेंट में 42 पेजेस हैं, हम इन सारे पेजेस पे एक कॉमन सेक्शन इंसर्ट करेंगे। तो फ्रॉम फॉर्मेट मेन्यू and not from the format, from the insert menu we have the option of header. हेडर में अगर हम ऑल पे क्लिक करते हैं तो हम सारे पेजेस भी इंसर्ट कर पाएंगे। लाइक अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ओके और इसको सेंटर में करना चाहते हैं, लेट मी चेंज द फॉन्ट साइज, व्यू साइज, सो दैट हम इसे क्लियरली देख पाएँ। यहाँ का फॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि हम इसको आसानी से देख पाएँ कि क्या हमने हर पेज पे ये स्टाइल अप्लाई किया या नहीं। ओके, जस्ट मेक इट वॉयलेट। तो अगर हम ये डीएवी पब्लिक स्कूल यहाँ पे देखें तो हम इस पेज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं 50%। अगर आप देखेंगे तो हर पेज पे ये डीएवी ऑटोमेटिकली लिख के आ गया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन में आप जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं वो हर पेज के लिए कॉमनली अप्लाई किया जाता है। ओके, कुछ ऑप्शंस और हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। हेडर ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट HTML, ऑल पे क्लिक करने से। अब हम बात करते हैं फुटर सेक्शन की। तो फुटर सेक्शन में भी हम ऑल पे जाते हैं। ओके, अगर आप देखेंगे तो फुटर सेक्शन सबसे नीचे में होता है और यहाँ पे हम कोई भी ऑप्शन इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे ये दें NCL ककरी प्रोजेक्ट, इसको भी सेंटर कर देते हैं। MC अगर आप देख पाएं तो हर पेज पे NCL ककरी प्रोजेक्ट इज अवेलेबल, वट एवर ऑप्शन वी हैव अप्लाइड हियर। ओके, तो ये हर पेज पे हेडर एंड फुटर कॉमनली वी कैन अप्लाई ऑल टुगेदर जस्ट बाय अ सिंगल क्लिक। ओके, सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू अप्लाई हेडर एंड फुटर। हम एक बार में